بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر، گڈ مارننگ، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ، ایک اور صبح میں صبح کے رنگ ایم نیوز کے سنگ میں۔ میں ہوں نازش خٹک اور میرا ساتھ دے رہے ہیں نجم الثاقب۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے، آپ کی صبح ہو گئی ہوگی اور صبح اچھے موڈ کے ساتھ اور ایک اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ نئے دن کا آغاز کیا کریں، کیونکہ پورا دن آپ لوگ نے آفس جانا ہوتا ہے، بچوں نے اسکول کالج جانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور اگر صبح صبح اپنا موڈ خود اچھا کرنے کی کوشش کریں تو دن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اتنا پازیٹیو انرجی کے ساتھ گزر جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ سروائیول ممکن ہو سکے۔ سو آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2 ہے اور اس کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کا رب بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، بس چاہے کہ وہ بھی میری بات کو مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ براہ راست نجات پا سکے، براہ راست علم جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ شان نزول اگر اس کا ہم دیکھیں کہ بیک پرسپیکٹیو کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل کی گئی تھی، تو یہ آیت رمضان کریم کے ایام کے دوران جو ہے وہ نازل کی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اکثر لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا، کس طریقے سے ملے گا، کون اس کو دیکھ رہا ہے، اگر براہ راست اللہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو کس طریقے سے ہے۔ تو اس کے ارشاد میں، اس کے پرسپیکٹیو میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں شامل فرمائی، اور اس کے اہم نکات ہیں۔ پہلا نکتہ کہ اللہ کی قربت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں انسان کے بہت قریب ہوں، اور پھر ہم بچپن سے یہ بات سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب شہرگ آپ کی یہاں پر ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو محسوس کرنے والی، آپ کی جان چلانے والی، خون کی روانی رکھنے والی جو شہرگ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی قریب ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا نقطہ ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں اخلاص ہو اور خالص نیت کے ساتھ، اور آپ کے دل میں یہی ایمان ہو کہ جو میں حاجت مانگ رہا ہوں، جو میری دعا ہے، یہ صرف اور صرف میرا جو مالک ہے، خالق ہے، جو رازق ہے، جس نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے، وہی قبول کرتا ہے اور وہی شرف قبولیت جو ہے اس کو ملتی ہے۔ اگر یہ آپ کے دل میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس دعا اور اس آیت کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ دعا کب قبول ہوگی۔ میں انسان کے قریب ہوں اور دعا بھی سنتا ہوں، لیکن کچھ شرائط بھی ہیں، وہ دل میں اخلاص نیت کا ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي یعنی کہ میرے احکامات مانیں، اور وَلْيُؤْمِنُوا لِي یعنی کہ مجھ پر پختہ ایمان رکھیں۔ تو نتیجہ ہدایت کیا ہے کہ جو دعا ہے، اطاعت ہے اور ایمان کو جوڑ لے، وہی حقیقت اور وہی حقیقی ہدایت بن جاتی ہے، اور وہی کامیابی کا جو ہے وہ آپ کا سفر بناتی ہے۔ سو یہ اس آیت کا مفہوم تھا جو آپ کو آج کے پروگرام کے شروع میں ہم نے بتایا۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، بہت اچھے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ کیسے ہمیں، اور یہ ہم بچپن سے واقعی میں سنتے آئے ہیں، اللہ ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن آپ کی خلوصی نیت جو ہوتی ہے نا وہ میٹر کرتی ہے، اور اسی لیے تو کہتے ہیں نیتوں کا اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت جو ہے اور آپ کا خلوص صاف ہوگا تو آپ کی منزل ضرور آسان ہوگی۔ بے شک جی، پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہے جی صبح کی خبر۔ تو صبح کی خبر کا آغاز کریں گے۔ ہمارے پاس سب سے پہلی خبر کیا ہے جی؟ اسلام آباد کے حوالے سے اسلام آباد کو 3 ٹاؤن کارپوریشنز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب شہر کے 3 میئرز ہوں گے۔ یہ گردش کر رہی تھی، میں بھی 2-3 دن سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا تھا، اور اب اس پہ فیصلہ ہو گیا ہے جی۔ نئے نظام کے تحت اسلام آباد میں 3 میئرز اور 6 نائب میئرز ہوں گے۔ میئر اور نائب میئرز کی مدت 4 سال ہوگی۔ انتخاب چیئرمین یونین کونسلز کریں گے۔ صدارتی آرڈیننس صدر مملکت کو ارسال دستخط کے بعد الیکشن کمیشن ترامیم کے تحت نئی حد بندیاں ہوں گی اور انتخابی شیڈول جاری کیا جائے گا۔ جیسا کہ اسلام آباد کے باسی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں 3 حلقے ہیں، اور انہی 3 حلقوں کی مدد سے ان کو 3 ٹاؤنز میں تبدیل کیا جائے گا۔ اسلام آباد سی ڈی اے کے جو
इख्तियारात हैं उनको मुंतकिल किया जाएगा, सफाई के हवाले से, निकासी आब के हवाले से और टाउनशिप को बेहतर बनाने के हवाले से जो मेयर्स हैं और उनके मातहत जो नायब मेयर्स हैं उनको इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। 4 साल की मुद्दत होगी और फिर वो फंड्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे। और अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि जो इख्तियारात हैं उनकी मुंतकली अगर नीचे तक हो तभी आवाम की बात सुनी जाएगी। ये इसीलिए ही किया गया है ताकि एक तो इख्तियारात की मुंतकिली उन तक पहुंच सके। फंड की जो तकसीम है वो सिर्फ ये नहीं है कि मतलब ज़ाहिर है बहुत बड़ा ये एक ट्विन सिटीज़ जो है वो बहुत बड़ा एरिया है और अब तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड भी आप कह सकते हैं कि हो गया है। ट्रैफिक को अगर हम देखें, सुबह हम आते हैं तो इतनी ट्रैफिक, वो मैं बचपन में पढ़ती थी एक जुमला कि जी गाड़ियों का ठाटे मारता हुआ समंदर, वो नजर आता है। अब मैं देखती हूँ कि वो ठाटे मारता हुआ समंदर ही दिखता है अब हमें इस्लामाबाद में। सो ये जो फैसला किया गया है वो इसी को मद्देनजर रखते हुए कि जो चीज़ों की तकसीम है, सफाई का इंतजाम है, वो अब बेहतर और एहसन तरीके से अंजाम दिया जाएगा। एग्जैक्टली जी। सो वी होप कि इस्लामाबाद की जो अब मसाइल बन रहे हैं आबादी बढ़ने की वजह से, उनको ऑल्दो CDA और हुकूमत उस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रही है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर कि रश कम हो सके, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन सकें, लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि गली मोहल्लों की सफाई और ख़ासतौर पर इस्लामाबाद का वो हिस्सा जो रूरल एरिया पर मबनी है उसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है, बॉडीज़ वहाँ पर काम करें, क्योंकि CDA के सेक्टर्स के अंदर तो हमें CDA के तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए मिलते हैं और सोसाइटीज़ के अंदर भी, लेकिन ऐसे एरियाज जो दूर दराज हैं इस्लामाबाद सराउंडिंग से, वहाँ पर काम होने की ज़रूरत है। पानी का इशू भी आता है, पानी पहुँचने का भी इशू आता है, फिर सफाई का निज़ाम जो है वो हमें थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। तो अब उन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम होंगे एग्जैक्टली जी। अगली खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आपको पता है पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बड़ा अच्छा बैंकिंग सेक्टर है और पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर्स में से 7 जो पाकिस्तानी बैंक हैं उनको एशियाई पैसिफिक के टॉप 15 बैंकों में शामिल कर लिया गया है। और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन का तारीख की कारकर्दगी पर जो है वो बैंकिंग को जो है वो खिराज तहसीन भी पेश किया गया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। पाकिस्तान में मुख्तलिफ फील्ड्स हैं और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन PBA ने मुल्क के पूरे बैंकिंग शोबे को बिलखसूस उन 7 पाकिस्तानी बैंकों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। ये आलमी एजाज महज इदारा जाती नहीं है बल्कि आम शहरी की फतह है। यानी कि हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है उनकी, अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो इतनी अच्छी कारकर्दगी है और कोई घपला, किसी किस्म का फ्रॉड जो है वो बैंकिंग सिस्टम्स में नहीं देखने में आता। इनफैक्ट हमारी डिजिटल बैंकिंग की अगर बात करें तो तमाम तर पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो अपने आप को इतना इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स पर ला चुके हैं। जो इंटरनेशनल बैंकिंग है वो पाकिस्तान में भी आपको मिलती है। ऑल्दो हमारे जो कार्ड्स हैं लाइक क्रेडिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड, उनको थोड़ा सा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उनको इंटरनेशनल मयार के मुताबिक आने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ऐसे बैंक्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स को कम्पीट कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से अगर इस बैंकिंग सेक्टर को अप्रिशिएट किया गया है तो अब वो इसमें मजीद बेहतरी, मजीद जिद्दत लाने की भी कोशिश करेंगे और इससे मजीद हमारी जिंदगियां भी आसान होगी और एक इंटरनेशनली भी हमारा इमेज बहुत अच्छा जाएगा। आगे बढ़ेंगे जी और देखते हैं कि जी क्या कहते हैं। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। आप लोगों को भी इस इशू का इल्म तो होगा ही कि ईरान में, कल हमने डिस्कस भी किया था ईरान में क्या हो रहा है। उसके पेश नज़र अमेरिका ने अपने जो शहरी हैं जिनके पास इनफैक्ट डुअल नेशनैलिटी भी है, ईरान की या फिर US, दोनों की जो नेशनैलिटी है, उनको भी हिदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें क्योंकि मुल्क भर में जारी एहतजाजात जो हैं वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और हालात पुरतशद्दुद होने का मजीद खदशा बढ़ गया है। अमरीकी सफारत खाने की तरफ से वार्निंग में कहा गया है कि ईरान में एहतजाजात के बायस गिरफ्तारियाँ हो रही है, ज़ख्मी हो रहे हैं लोग, सिक्योरिटी इक़दाम जो हैं वो दरहम बरहम है, सड़कें बंद है, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है और इंटरनेट की बंदिश जैसे हालात हैं जिससे अमरीकी शहरियों की सलामती को खतरा लाहक है। अब डेफिनेटली जी अमेरिका यहाँ पर खुद कुछ करने जा रहा है या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे लोग तो काफ़ी डरे हुए हैं। ख़ासतौर पर ईरान के अंदर रहने वाले, एहतजाज भी चल रहा है और ऐसे लोग जो ना हुकूमत के साथ हैं ना हुकूमत के अगेंस्ट हैं, उन लोगों के लिए तो ज़्यादा खतरा है। अब यही सवाल उठ रहा है हाँ कि आया जो इन अपने शहरियों को निकालने की हिदायत जारी की है, वार्निंग दी है, ये इस हालात जो इस वक्त कशीदा हैं उसकी बाइस दी गई है या फिर अमेरिका खुद कुछ जो है
करना कुछ चाह हो रहा सकता है, है। उसकी वजह से है, ये तो Well, we'll वक्त ही see and बताएगा। we'll update you definitely. आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं, आपको एक ऐसे दरख्त के बारे में बताते हैं जिसका नाम है ऑलिव ट्री ऑफ वाव्स, और ये पाया जाता है यूनान के अंदर। और कहा यह जाता है इस दरख्त के बारे में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले का ये दरख्त है जो अभी आज भी तक फल दे रहा है। आइए Very इसके हवाले से interesting। आपको बताते हैं। ये है जी जैतून का दरख्त। टीवी स्क्रीन्स पर आप लोगों की वो जैतून का दरख्त मौजूद है जो ऑलिव ट्री ऑफ वाव्स के नाम से मशहूर है यूनान के अंदर। और कुछ लोगों का ये मानना है कि तकरीबन 3000 साल पुराना ये दरख्त है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि 4000 साल पुराना बट ये दरख्त है। इंटरेस्टिंग जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अभी तक फल भी दे रहा है। एग्जैक्टली। हालांकि ये अल्लाह की इतना कुदरत है, जी। और इतना पुराना दरख्त अगर पाया जाता है, उसकी मतलब कितनी हिस्ट्री, इतने कुरान में हजारों जो कहते साल हैं पुराना जी, दरख्त। अपने आसपास देखो तो अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हर जगह नजर आते हैं, तो वो इस किस्म के ही होते हैं, पर देखने की आंख चाहिए होती है, और इसी से हमारा ईमान मजीद पुख्ता होता है। और ये जहाँ पर दरख्त मौजूद है वहीं पर पास में, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़रखेज़ है जैतून के हवाले से, तो जैतून म्यूज़ियम भी यूनान में यहाँ पर पाया जाता है, जिसके बिल्कुल साथ ही ये दरख्त वाक़ है। ये दरख्त न सिर्फ 1997 में अपनी गैर मामूली कदीम उम्र की वजह से मशहूर हुआ, बल्कि इसकी शाखों को कई तारीखी मौक़े जैसे ओलंपिक्स की रसूमात में भी इस्तेमाल किया जा वेरी चुका है। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। So that was the news, yeah. या और अभी तक वो पलधार दरख्त है, ये सबसे बड़ी बात है। आगे बढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ेगे और देखते हैं हमारे पास एंटरटेनमेंट से क्या न्यूज़ है। आप लोगों को कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ बताई थी जिसमें Driverless taxi. हाँ जी, चाइना में एक ड्राइवरलेस जो टैक्सी थी उसमें एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया था, रिमेंबर दैट? हाँ, तो अब वो उसका जो है इनिशिएटिव दुबई में भी लिया गया है, और अब दुबई में भी हमें ड्राइवरलेस टैक्सियाँ मिलेगी। ये और पहली बार इजाजतनामा भी उनको जारी कर दिया गया है। हाँ जी, और ये भी टेक की तरफ एक जो है नया कदम है जो कि अब हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी आए। दुबई ने स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के मैदान में एक और तारीखी कदम उठाते हुए बगैर ड्राइवर टैक्सियों के लिए पहला कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर कायम कर दिया है। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी बाइडो वापोलो गो का ये जदीद सेंटर चीन से बाहर अपनी नौयत का पहला मरकज है, जो दुबई की मसनूई जहानत और जदीद नक्लो हमल में आलमी क़यादत के अज़्म की अक्कासी कर। और यहाँ पर गाड़ियों की हिफाजत की जांच होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे, चार्जिंग होगी, मुरम्मत होगी, और उसके अलावा हंगामी रद्द अमल जैसे तमाम और ये कितने सेफ वैसे हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर उसमें खातून जो है वो बीमार थी और अब उस गाड़ी ने खुद ही ऑटोमेटिकली 911 पे कॉल की, रेस्क्यू किया गया, उसी दौरान में खातून ने वहाँ पे को जन्म भी दे दिया। तो आई थिंक वी कैन से कि इट इज ऑलरेडी वेरी सेफ एंड साउंड, बट स्टिल अगर वो इतनी मुतमईन हो के ये दे रहे हैं कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें जो है लाई जाएगी, ताकि किसी को ये शक व शुबा ना हो कि ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। आगे बढ़ेंगे जी, और हॉलीवुड अदाकार ने एक स्टेटमेंट दी है जिसके मुताबिक उनका कहना है कि जी बदतरीन इंसान है कौन? डोनाल्ड ट्रंप। जी, ये हमारा कहना नहीं है, ये हॉलीवुड के अदाकार है, उनका कहना है। अदाकार का नाम है मार्क रूफालो। उन्होंने कब कहा ये? गोल्डन ग्लोब में शिरकत के दौरान महज फिल्मी तकरीब की खुशी मनाने के बजाय एक संगीन समाजी और सियासी पैगाम दिया। उनके मुताबिक उनका कहना था कि जी उन्होंने इस मौके पर एक बी गुड पहन रखा था ताकि रिन्यू जो उसकी याद है वो दिलाई जा सके। इन्होंने हाल ही में अमेरिका के शहर मिनिएपल्स में ICA के एहलकार ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। आप लोगों को वो स्टोरी भी याद होगी, वो हादसा याद ही होगा। रूफालो ने इस मौका पर कहा कि वो अपने नामजदगी पर फख्र करते हैं, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात मामूल के नहीं रहे, और एक खुशी की तकरीब में बैठकर इसके लिए खामोश रहना जो है वो अब मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि वो अमेरिका से मोहब्बत करते हैं, मगर आज जो कुछ यहाँ हो रहा है वो उनके ख्याल में असली अमेरिका नहीं है। बहुत सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा। अदाकार ने ये भी बोला कि ट्रंप और उनकी इंतजामिया पे मैं सख्त तनकीद करता हूँ। अमेरिका एक ताकतवर मुल्क ज़रूर है, मगर उसकी क़यादत बैनुल अक़वामी क़वानीन को अहमियत नहीं दे रही है। और ये है राय खूबसूरत उन लोगों की जो अमेरिका के अंदर रहते हैं। अमेरिका की बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कन है, और अमेरिका में
ایک obviously he have some standards اور وہ اپنے اس تمام تر چیزوں کے سوچ کے ساتھ اگر کسی بات کو کر رہے ہیں جو ہے مورل تو لوگوں کو ویلیوز نظر اس آتا وقت ہے. ہمیں شو کر رہا ہے کہ بے شک وہ ہالی ووڈ کا ایک بہت جانا مانا اداکار ہے, سب اس کو پسند کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ انسان کو اپنے ڈسپلن اور اپنے مورل ویلیوز کی قدر کرنی چاہیے اور دوسرے کو بھی بتانے چاہیے کہ بے شک میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن اگر میرا ملک بھی ایک غلط جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے دوسرے ملکوں کی قوانین میں مداخلت کر کے, تو میں ڈیفینیٹلی اس پہ آواز ضرور اٹھاؤں گا. بہت اچھا میسج دیا ہے انہوں نے. ویل لیٹس موو فارورڈ جی, اور بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے پاکستانی اداکار ہیں کامران جیلانی. انہوں نے آج کل کے دور میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ہیں, وہاں سے دوستیاں ہوتی ہیں, دوستیوں سے شادیاں ہو جاتی ہیں, لیکن انہوں نے بہت عرصے پہلے جب فیس بک بھی نہیں آیا تھا تب آرکٹ ہوا کرتا تھا, اس وقت کی انہوں نے اپنی محبت کی داستان سنائی کہ کس طریقے سے ان کو ایک خاتون ملی, ان سے ان کی گپ شپ ہوئی, آرکٹ انہوں نے یوز کرنا سکھایا ان کو, اور پھر اس کے بعد یہ اسلام آباد گئے, وہاں پر ان سے دوستی ہوئی اور آج ان کی ملاقات ہوئی. ہاں, اور آج وہ ان کی اہلیہ ہے. بہت اچھی اسٹوری ہے ویسے, جہاں پر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اسکیمز بہت ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ورغلایا بہت جا رہا ہے, راستے سے جو ہیں بچے بھٹک جاتے ہیں. وہیں پہ ہمیں ایسی بہت ساری اچھی اسٹوریز بھی ملتی ہیں جو سکسیزفل جو ہیں کپلز آج زندگی گزارے خوش و خرم. تو ایسی چیزوں کو ہم بڑھاوا بھی نہیں دیں گے, لیکن اگر ایسی چیزیں اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں سو وائی ناٹ. ہر چیز کا مثبت استعمال کرنا سیکھیں بیسکلی. ایگزیکٹلی, اور ایسا انٹرنیٹ کا بھی مثبت استعمال ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا وہ شادی کرنی ہے تو اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی مل نہیں رہا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ جو ہے وہ صبر بھی کر سکتے ہیں. ہاں, آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن جانچ پڑتال کرنی ضروری ہے. ہاں, یہ تھا جی ہمارا سیگمنٹ صبح کی خبر. اب ہم لوگوں کو بڑھنا ہے ایک وقفے کی طرف. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے اور ان سے ہم بات کریں گے 2026 کیسا ہونے والا ہے پاکستان کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے. ملکی اکانومی میں 2025 میں کیا ہم نے اہم اچیومنٹ کی, کیا گورنمنٹ کی غلطیاں ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سینئر اکانومسٹ موجود ہوں گے. کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. خواتین و حضرات, اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. 2025 کی رپورٹس کے مطابق پاکستان کی معیشت میں بہتری سامنے آئی ہے, اور جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ جس ریکارڈ سطح پر موجود ہے اس سے دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان میں کاروباری لوگوں کو کافی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. SIFC کی کارکردگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہیں. IMF جہاں پر پاکستان کے قرضوں میں مدد دے رہا ہے, پاکستان کی معیشت کو سہارا دے رہا ہے, وہیں پر IMF کی جو شرائط ہیں اس سے لوگ سخت پریشان ہیں اور عوامی سطح پر مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. عوامی سطح پر عوام جو ہے وہ خوش نظر نہیں آتی, اور دوسری جانب جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی یہ سٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس ہیں, جو رپورٹس ہیں, یہ صرف اور صرف نمبروں کی ہیر پھیر ہے. 2025 میں پاکستان کی معیشت آہستہ اگر ہم دیکھیں تو اس پہ بحالی کی طرف گئی ہے, جس میں GDP کی شرح نمو تقریباً 2.6% رہی, جو پچھلے سالوں کے مقابلے میں معمولی بہتر کی علامت نظر آتی ہے. مہنگائی نمایاں طور پر کم ہو کر تقریباً 4.7% نظر آئی ہے, جبکہ بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ تقریباً 8% رہی ہے, جس سے بے روزگاری میں ہلکی بہتری جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے. زراعت کو قدرتی آفات اور کیڑوں سے نقصان ہوا ہے, جبکہ صنعت اور خدمات کی ترقی جو ہے وہ سست رہی ہے. IMF اور اصلاحاتی پروگراموں کے ذریعے مالی استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر کی بحالی ممکن ہوئی, تاہم عالمی اقتصادی سست روی اور تجارتی مسائل جو ہے وہ ترقی کی راہ میں جو ہے وہ بڑے رکاوٹ بنتے ہوئے نظر آئے ہیں. 2026 کے لیے ترقی کی توقع جو ہے وہ شرح کی گئی ہے تقریباً 3 سے 3.6%. اصلاحات اور استحکامات جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری و ساری ہیں, جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت سارے مسائل پیدا کر رہی ہے. تو 2025 کی پرفارمنس اور اکنامک پالیسی کو دیکھتے ہوئے 2026 میں حکومت کو کن کارکردگی اور کن چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری صنعت کو فروغ دینے کے لیے, کاروبار کو فروغ دینے کے لیے
एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इस वक्त किन पॉइंट्स के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है, इसी पर हम लोग आज के सेगमेंट में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्क के सीनियर इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि 2025 की इकोनॉमिक पॉलिसी आपके लिहाज से कैसी रही, ओवरऑल इसका जायजा जरा दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाइया में जो बात की वो मैं एग्री करता हूँ कि ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही, स्टेबिलिटी की रही, और जो गुज़िश्ता सालों में जो बहुत ज़्यादा रुकावट आ गई थी, इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया था, नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी, और इन्फ्लेशन जो है वो जिसे कहते हैं बहुत रिकॉर्ड हाई लेवल पे चली गई थी, डबल डिजिट्स में। वो सारी चीज़ें स्टेबिलिटी में आई और हम IMF प्रोग्राम का हिस्सा होते हुए वो तमाम जो रिक्वायर्ड डिसिप्लिन का मुजाहरा करना था वो किया। हुकूमत ने अपने इंपोर्ट्स को कंप्रेस किया, अपने फिस्कल लॉसेस को कर्टेल करने की कोशिश की, अपने अखराजात को कम करने की कोशिश की, सब्सिडीज को रिमूव करने की कोशिश की, ओवरऑल आपकी जो एक्सचेंज रेट है उसको बेहतर करने की और स्टेबलाइज करने की कोशिश की। इन तमाम चीज़ों की वजह से अभी आप देखते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो अब सिंगल डिजिट्स में है, 4 से 6% के दरमियान होवर कर रही है। ग्रोथ जो है अब कह सकते हैं कि अब हमारा जो रास्ता है वो हमवार हो गया है आगे की जर्नी के लिए, आगे के सफर के लिए, और वो पॉजिटिव है। हमारी रेटिंग जो फिच की तरफ से है वो B नेगेटिव हो गई इंटरनेशनली, और बहुत से इदारे जो पहले हमें मजीद कर्जा देने में इंटरेस्टेड नहीं थे वो देने लगे। बहुत सी दुनिया जो इंटरेस्ट नहीं ले रही थी वो दोबारा से हमारी तरफ मुतवज्जे हो गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये तो कुछ ज़्यादा वो अच्छी वाली बात नहीं कि अपने के कर्जा देने में इंटरेस्ट ले रही है। हम चाह रहे हैं कि हम उस सिमत में गामजन हो कि जहां हमें कर्जा लेना ही ना पड़े। उस पे अब क्या कहेंगे 2026 में, क्या हमें ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि हमें इंशाल्लाह किसी की तरफ मुड़ना नहीं पड़ेगा कर्जे के लिए? अभी हम इसकी मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि अभी हम रनवे पे सिर्फ हम चल रहे हैं, अभी हम टेक ऑफ नहीं किए। वो जो मिसाल है और वो जो अहदाफ हैं जो हमें कि हम कर्जा देने वाले बन जाएं लेने की बजाय, वो तो अभी बहुत दूर है। अभी हमें अपने घर को दुरुस्त करना है। तो असल चीज जो आपने अपनी इसमें इंट्रो में फरमाई, SIFC ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की, मुख्तलिफ इदारों ने कोशिश की, गवर्नमेंट ने कोशिश की, वो तमाम यानी कि ऊपर की सतह पे तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे तो बेहतरी आ गई, लेकिन अब असल जो कहानी है वो है माइक्रो लेवल के ऊपर। यानी कि गहराई के अंदर वो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है जिसमें आपका जो खजाना है उसके अंदर जो एक्सचेकर के अंदर जो पैसे आते हैं टैक्स की मद में, उनकी कलेक्शन बेहतर हो, आप जो अपने अखराजात हैं अपनी एफिशिएंसीज बेहतर करें, और अपनी जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं जिस तरह PIA है जिसको भी हालिया जो है वो प्राइवेटाइज किया गया है, बाकी भी इस किस्म के तमाम इदारे जो हुकूमत को उसके यानी कि एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो उनसे जिसे कहते हैं प्राइवेटाइज किया जाए। तो इस तरह से वो रिफॉर्म्स जो हैं ये अब असल जो मसला फॉरवर्ड गोइंग है वो ये है, और डेफिनेटली जो अखराजात हैं उनको खत्म करने की कोशिश करनी है, जिसमें सबसे बड़ा डेट सर्विसिंग है बिल्कुल, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता हमने किस साथ वापस भी करनी है और कोशिश करनी है कि नए ना लें। ये उसी सूरत में होगा जब हुकूमत जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बहुत मुहतात तरीकों से जो है वो एक्सपेंडिचर्स को करेगी और लॉसेस को कर्टेल करेगी। ठीक, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि 2025 के हवाले से आपका जायज़ा बिल्कुल जो नज़र आता है सिचुएशन उसके मुताबिक ही, लेकिन सर इस वक्त कुछ मसाइल दरपेश जो हैं, एक तो ये फरमाइएगा 2025 में किन ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत थी, जो लैकनेस रही, जिन एरियाज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स सीधे सीधे नज़र आते हैं। अगर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मेरे सामने जो एक तो गर्दिशी कर्जे का भी मसला है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो रहा है, और फिर दूसरी जाने पे हम लोग देखें तो हमारा कमज़ोर टैक्सेशन का जो निज़ाम है उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, गर्दिशी कर्जा जो है वो एफिशिएंसी से ताल्लुक है या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो गुज़िश्ता दिहाइयों में हमने गलत किए IPPs के साथ या और ऐसे इदारों के साथ, या लॉस मेकिंग। तो गर्दिशी वो गैस की मद में हो,
चाहे इलेक्ट्रिसिटी की मद में हो, चाहे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो मैंने कहा कि ड्रैग कर रही हैं पूरे सिस्टम को, तो उनसे हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है छुटकारा हासिल करना है, उन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाना है, उनको रीडू करना है। और यही कोशिश है जो प्राइवेटाइजेशन का जो हुकूमत का जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि ये बहुत इतना सिंपल और वो नहीं है, इसमें काफी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस हैं, बिकॉज कोई भी जो प्राइवेटाइज करने की हम कोशिश करते हैं तो वो लेना नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनको पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। तो इसके साथ साथ आपने कहा टैक्सेशन, तो डिजिटाइजेशन इज द वे टू गो। हम इसके बारे में चर्चा तो बहुत अरसे से सुन रहे हैं, डिस्कशंस भी हो रही हैं एफपीआर के पॉलिसी विंग से, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो अब उसके हम इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक बहुत स्लो रिफॉर्म्स हुए हैं, अभी उसको इनहांस करने की जरूरत है। इस हद तक तो ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर या लेकिन असल चीज एग्जीक्यूशन है। और फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको इन कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत है, आवाम को, उन सेक्टर्स को, कि भाई ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तमाम जो हिस्से हैं हमारी इकोनॉमी के वो अपना अपना यानी इनकम के हवाले से जब वो करेंगे तो हम रेट को घटा सकेंगे और इवेंचुअली जिनके ऊपर गैर जरूरी बोझ पड़ा है वो कम हो जाएगा। सर, प्राइवेटाइजेशन की बात आपने की, मैं इसी सवाल की तरफ आना चाहूँगी। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि प्राइवेटाइजेशन हम देखते ही आए हैं, बहुत अरसे से हो रही है, राइट? क्या लगता है आपको कि हिस्ट्री में भी काफ़ी हद तक जो है आप कह सकते हैं कि उसका कोई इतना मुअस्सर हमें वो नज़र नहीं आया कि उसका आउटकम इतना मुअस्सर रहा हो? प्राइवेटाइज करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो कोलैप्स भी कर जाती है। और दूसरा मुझे ये भी बताइए, टैक्सेशन की आपने बात की, कितना हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मुअस्सर है कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ताकि क्योंकि वो एक रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसको इफेक्ट करता है। जी, पहली बात ये कि प्राइवेटाइजेशन की जो गुज़िश्ता दिहाइयों के अंदर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किए उसमें बेतहाशा बैंक्स हैं। आज अगर यूबीएल बैंक जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो याद रखिए कि एक जमाने में वो प्राइवेटाइज हुआ था। इस तरह के पीटीसीएल की एग्जांपल है आपके पास। तो ऐसे अगर हम देखें तो बेतहाशा एग्जांपल ने अपने बहुत से इदारे ओवर द इयर्स पार्शली डाइवर्स्ट किए या कंप्लीटली प्राइवेटाइज किए, और उसकी वजह से वो ना सिर्फ इदारे ग्रो किए, उनकी सर्विसेज से जो है पाकिस्तान की आवाम मुस्तफीद हो रही है। तो इसी तरह से अब जो वो एंटरप्राइजेज हैं जो पीछे रह गई हैं, उनसे जब जैसे जैसे हम निकलेंगे, हुकूमत निकलेगी, तो एक तो हुकूमत का जो बोझ है उसके ऊपर कम होगा, दूसरी तरफ लोग जो है आवाम होगा। अगर अब पीआई प्राइवेटाइज हुई है तो अब आप देखेंगे कि कल को उसकी सर्विसेज बेहतर होंगी। इस साल में आई थिंक जो अप है उसमें एयरपोर्ट्स हैं, तो एयरपोर्ट्स की सर्विसेज बेहतर होंगी। इसी तरह और कुछ बैंक्स हैं जो छोटे लेवल के हैं, उनकी करने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि टैक्सेशन की बात जहां आप कर रहे हैं, तो टैक्सेशन चूंकि बहुत हाई है और हाई उसकी शरह है, इसकी वजह से डिस्करेज हो रहे हैं। आप देखें कि इस एक साल में अनफॉर्चुनेटली बहुत से जो पहले के सेगमेंट से जो सक्सेसफुल थे और अच्छे लेवल पे थे वो पाकिस्तान से एग्जिट कर गए। तो देखने की जरूरत ये है कि हुकूमत के लिए कि इन रेट्स को, शरह को बहुत जल्दी कम कर, ताकि ना जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स या इंडस्ट्री या वो यहाँ से बाहर ना जाए, बल्कि नए वाले जो है वो अट्रैक्ट हो सकें। क्योंकि नए जो भी आते हैं वो देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स को, तो वो बाजू का डिस्करेज हो जाते हैं हाई टैक्सेशन रेट की वजह से, या हाई बिजली के टैरिफ्स की वजह से, या हाई गैस के टैरिफ्स की वजह से। तो ये तमाम चीजों का ताल्लुक दारोमदार गवर्नेंस, एफिशिएंसी और आउटपुट से है। तो सर, इसी से जुड़ा हुआ ही एक सवाल में करूंगी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ से मतलब अपनी वो बंद करके बाहर जा चुके हैं, वापस जा चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। उसकी वजह से एक तो एम्प्लॉयमेंट रेट पे भी असर पड़ेगा, जाहिर है जो उसमें एम्प्लॉयड लोग थे वो अब अनएम्प्लॉयड होंगे, और साथ ही आपको क्या लगता है उससे हमारी इकोनॉमी को कितना जो है वो नुकसान पहुंचेगा? जितनी आपकी बात सही है। एक तो हम अभी हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो हमें पिछले लाख कोशिश के बावजूद अभी भी हम 13 से 14 के दरमियान हैं, जो कि रीजनल सतह पे 30% की एवरेज जा रही है। तो हमें अभी बहुत लंबा सफर वो तय करना है। तो डेफिनेटली वो नेगेटिव जो मेहनत करते हैं, चाहे एसआईएफसी कर रहे हो चाहे दूसरे इदारे कर रहे हो, तो वो एक नेगेटिव मैसेजिंग जाती है। जब हम तमाम चीजें सही कर रहे हैं तो ये जब हम दुरुस्त करेंगे तो ही लोग आएंगे। लेकिन ऊपर की सतह से मैक्रो इकोनॉमिक के बाद जो असल चीज है वो देखते हैं कि उनका इनकम यहाँ से रिपेट्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते,
बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि अभी भी हमारे 12 से 13 सेंट्स हैं और जो इस रीजन के अंदर एवरेज हैं वो 8 to 9 सेंट्स हैं। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा एक इनपुट कॉस्ट है। और फिर कैपेसिटी, हमारे पास आज भी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। आपने कहा 7.5 से 8% हमारी कमी है, लेकिन स्किल्ड लेबर जो है हाईली टेक्नोलॉजी के अंदर जो काम करना है वो उनकी अभी भी कमी है हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम लोगों ने पहले भी गर्दिशी कर्जे की बात की, उसका बोझ भी आवाम को उठाना पड़ रहा है। फिर IMF का प्रोग्राम, इसके हमें फ़वाइद तो हैं, लेकिन इसके नुकसानात की वजह से आवाम पर सब्सिडीज़ का चूँकि हुकूमत ने सिलसिला बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। ऑल्दो ये बताइएगा कि सब्सिडीज़ आपके ख़्याल में कैसी होती हैं किसी भी चीज़ पर अगर दी जाए, और इस वक्त की जो सिचुएशन है, आवाम को जो मुश्किलात का सामना है, उससे निकलने के लिए जब तक IMF का प्रोग्राम क्लोज़ नहीं होगा तो कौन से ऐसे वे आउट हैं जहाँ से आवाम को फ़ायदा दिया जा सकता है बराह रास्त? देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि पॉपुलिस्ट सी बात है कि IMF एक ऐसा जिन है जो हमें जिसे कहते हैं कि जिसकी वजह से सारे मसाइल हैं। एक्चुअली ये नहीं है। IMF सिर्फ आपको एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है और वो आपको बताता है कि आप अपने घर को किस तरह दुरुस्त करें। अब जब आप घर को दुरुस्त करते हैं तो उसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जो उनको पहले सब्सिडी की आप बात कर रहे हैं, उनको बहुत सी चीजें फ्री मिल रही थी या सब्सिडाइज मिल रही थी, वो रिमूव करनी पड़ती हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इंडस्ट्रियल आउटपुट, आपको पता है कि टेक्सटाइल्स और हमारे एक्सपोर्ट्स अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे में 5 महीनों में गिरे हैं, कम हुए हैं। अब उसको हमारी आज भी जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है वो आज भी क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा है हमारे घरों के सारिफ को। तो ये दुनिया में ऐसे नहीं होता, इसके बरक्स होता है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल टैरिफ होता है वो लोअर होता है कंज्यूमर के टैरिफ से। तो ये आप ये देखें कि जब हम सब्सिडीज रिमूव करेंगे तो लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल लीडरशिप ने देनी है कि IMF की वजह से नहीं कर रहे, ये करना जरूरी है। कड़वी गोली हमें खाएंगे तो आगे बेहतर होंगे। जितना ज्यादा इसको डिले करते जाएंगे ये प्रॉब्लम और ये तकलीफ आगे हम बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी माहिराना राय वैसे इस बारे में क्या कहती है कि IPPs जो हैं वो, और साथ में ही हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो हमारे मुल्क की इकोनॉमी को कितना जो है इफेक्ट कर रही है? देखिए, ये सारे वेरिएबल्स मिलके करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या उसके अंदर तशवीश पाई जाती है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो डिस्करेज करता है। लेकिन डेफिनेटली बहुत से मुल्कों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या उसके बावजूद बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स फिर भी जाते हैं, बशर्ते कि उनके पास उनकी टैक्सेशन का निज़ाम अच्छा हो, रिपैट्रिएशन कर सकें अपने प्रॉफिट्स की, कैपेसिटी वहाँ अच्छी हो, टैरिफ्स अच्छे हो और टैक्स की जो है ना वो आसानी हो। यहाँ पे जो भी बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्री है, उन पे सुपर टैक्सेस लागू कर दिए गए हैं। तो वो डिस्करेज होके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर फर्दर जो आने वाले हैं वो भी थोड़े से इसको देखते हैं, क्योंकि सारी दुनिया खुली है, ग्लोबल मार्केट्स अवेलेबल हैं और उनके पास बहुत सी मार्केट्स उनको अट्रैक्ट कर रही हैं कम टैरिफ्स के अंदर और बेहतर टैक्सेशन के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो फिस्कल ईयर 2025 में कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की, GDP ग्रोथ की, वो 3.3% रही है। ठीक है, 3.0% और सिमिलर फॉरकास्ट किया जा रहा है फिस्कल ईयर 2026 के लिए भी। और वजह ये बताई जा रही है कि वीक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो और अफेक्टेड हुआ फ्लड की वजह से 2025 में। लेकिन सर SIFC काम कर रही है एग्रीकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर की ग्रोथ कोई आपने देखी है पिछले कुछ अरसे में? देखिए, मैंने कहा जैसे स्टेबलाइजेशन हुई है उसमें इंडस्ट्री की भी हुई है, एग्री की भी बेहतर हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हमें वाकई ही पूरे मुल्क को आगे लेके जाना है, क्योंकि हम थोड़ी सी आगे की बात कर रहे हैं, तो आगे जाने के लिए हमें आउटपुट कुछ खासा बढ़ा। अभी भी हम 30% या इससे भी ज्यादा लो हैं अपनी कैपेसिटी के हवाले से। तो SIFC तो सिर्फ एक डोर ओपनर है, वो तो सिर्फ लोगों को ला सकता है, लेकिन अल्टीमेटली काम हमारी आवाम ने करना है, हमारी गवर्नमेंट ने करना है, हमारे डिपार्टमेंट्स ने करना है। SIFC इज जस्ट एक ब्रोशर है जो लोगों को यहाँ पे खींच के लाता है। अल्टीमेटली काम हमें करना है, शॉर्टकट कोई नहीं है। अब उसका मतलब क्या है? हमें आउटपुट बेहतर करना है, अपने लॉसेस को कर्टेल करना है। हमने जो कैपेसिटी है, आज हमारे 10 से 15 हजार एग्री के नए लोग पैदा होते हैं, यानी इंडस्ट्री ग्रेजुएट्स आते हैं। हमें मॉडर्नाइजेशन करनी है। अभी हमने 1000 लोग भेजे थे चाइना ताकि वो ट्रेन होके आए और मास्टर ट्रेनर्स बने और वो यहाँ आके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, ओवरसाइट हो, बायोटेक्नोलॉजी हो,
तो हमें इन कैपेसिटीज को इनहांस करने की जरूरत है। तभी कोई शॉर्टकट नहीं है, ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। अगर हम लगातार 5 साल 10 साल के अंदर इसको एक जिसे कहते हैं एक सोची समझे थीमेटिक तरीके से आगे चलेंगे तो हमें आउटपुट्स जो है वो नजर आने शुरू होंगे। सर, हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत सारी हमने देखी है, तेज़ रफ्तारी भी आई है, अब बहुत सारी न्यू जदीद टेक्नोलॉजी आई है। मैंने 2 जगह का दौरा किया, विज़िट किया, वहाँ मैंने ऐसी चीज़ें देखी जो इससे पहले हमें नहीं देखने में मिलती थी। लेकिन फिर भी हमारा एक तो मुल्क भी एग्रीकल्चर मुल्क है। आप देखें तो हमारे जो वैसे भी जो 4 आइटम्स हैं, कपास, जूट, चाय, उसमें से भी इवन जो है हमारे पास चाय और वो नापैद हो रही है। सो क्या वजह है कि हम एग्रीकल्चर को की जो हम एक पॉलिसी बनाते हैं या हम जो उस पर काम करना चाहते हैं वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और उसका जो आउटकम निकल सकता है वो निकल नहीं रहा? देखिए, सारी बात आपने बिल्कुल एक्चुअली आपने सम अप ही कर दी है। सारी बात एग्जीक्यूशन की है। हमारे पास पॉलिसीज बने हुए हैं, डोजियर्स बने हुए हैं, डिटेल्स बनी हुई हैं, वर्किंग्स हुई हुई हैं। जिन लोगों ने एग्जीक्यूट करना है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं, हमारे यूसीज के अंदर हैं, हमारे प्रोविंसेस के अंदर हैं, क्योंकि ये है भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट। उनको फिर जो है ना, दे हैव टू वर्क वेरी क्लोजली विद द फार्मर्स, छोटे फार्मर्स से लेके बड़े फार्मर्स, और फिर इनके अंदर वो टेक्नोलॉजी जो आपने अभी देखी वो शायद कोई लार्ज या एक तारुफी या एक कैसे आइकॉनिक लेवल पे तो होगी, लेकिन उसको मैस स्केल अप करना होगा। तब आपके आउटपुट्स कपास के अंदर बेहतर होंगे, वीट के अंदर बेहतर होंगे, आपके दूसरे जो कमोडिटीज हैं। और अभी भी आज हम कमोडिटीज, चाहे वो हम किन्नू हो, चाहे हम आम हो, चाहे हम चावल हो, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम जब ग्लोबल सतह पे देखते हैं तो अभी भी हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत मार्जिनल है। बहुत से मुल्क अभी हमसे आगे हैं, तो हमें उसको अपनी उस जगह को दोबारा से हासिल करने के लिए थोड़ी सी एक फोकस्ड एक्टिविटी जो है वो करने की जरूरत है। ग्रैंड सब्सिडी फर्टिलाइजर की देने या उसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं फोकस्ड बात कर रहा हूँ जिसके अंदर हैंड होल्डिंग के साथ वो करें। और ये आई थिंक जो चाइना में भेज के हमने अपने ट्रेन कराए, इसी किस्म की हमें अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है। एक बैच था, वी होप कि ऐसे और जाएं बैचेस। आपने ये जो इंडस्ट्री की बात की, इसी से मैं जोड़ना चाहूँगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। हमारी मुल्क की इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीसरी की 5वीं बड़ी इंडस्ट्री है, बट फिर भी आप देखें तो उसमें भी जो है अब वो क्वालिटी नहीं रही या फिर वो आई थिंक क्वांटिटी नहीं रही जो कि डिमांड हम करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखें हमारा जो है फुटबॉल फीफा में यूज होता है, हमारे इसी तरह लेदर जैकेट्स बाहर यूज होती है, सब कुछ ही बाहर भेजा जा सकता है, फिर भी क्यों हम अपना जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, क्वांटिटी जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं? कैपेसिटी इश्यूज हैं। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने भी, मैं एक चीज पकड़ लेता हूं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पूरी दुनिया की मार्केट $150 बिलियन की है और हम टोटल इसमें से एक बहुत, मतलब इसको आप परसेंटेज में देख लें, हमारी टोटल 300 से 400 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो आप इमेजिन करें, यूएस आज भी 30 बिलियन से ज्यादा है और दूसरे ममालिक जिनका हमें पता भी नहीं है वो 11 बिलियन कर रहा है, चाइना जो है इसी तरह, और यूरोपियन मुल्क, जर्मनी एक्सेट्रा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी कैपेसिटी जो है ना, हम घर में तो बहुत खुश हैं कि हमने ये चीज कर ली, वो कर ली, लेकिन हमें देखना है कि बाकी दुनिया कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। हमें अपनी कैपेसिटीज एनहांस करनी है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मिनिमम। ये नहीं लगता कि हम अपने एसेट को पहचानने से जो है कतराते हैं या पहचान नहीं पाते? वहाँ बहुत से लोग जो हैं घरों में एक छोटे स्मॉल स्केल पे बिजनेसेस कर रहे हैं, हमें उनका नहीं पता। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, अभी हमने एक रिपोर्ट में देखा है कि जी पाकिस्तान से कितने जो है नौजवान यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम अपने ही एसेट को जाया करते हैं जिसकी वजह से हमारे ये सारे मसाइल हैं? मसलन हम आईटी के अंदर हम चाह रहे हैं हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि हमारे इसी तरह से ये इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे वो जो ग्रे, एक तो ब्लू कॉलर है, फिर ये ग्रे कॉलर यानी कि जिसे कहते हैं टेक्निकल, हमारे आउटपुट क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, और हमारी क्या वो क्वांटिटीज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं कि वो कैपेसिटी इनहेंस कर सकें। कैपेसिटी ना इनहेंस करने की वजह जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादातर रिलायंस रही है सब्सिडी के ऊपर, कि हुकूमत कोई टारगेटेड सब्सिडी दे दे इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को और किसी सेक्टर को, चाहे वो एक एसोसिएशन हो, वो अपने वो ले ले एसआरओज के जरिए।
तो ये बाकी दुनिया जो आगे क्यों बढ़ी है वो कंपटीशन के जरिए बढ़ी है, उनका Exactly. फोकस ठीक है। डोमेस्टिक कंपटीशन से ज्यादा इंटरनेशनल ग्लोबल कंपटीशन की तरफ रहा है। हम्म, हमारा थोड़ा सा फोकस रहा है कि हम जिसे पैट्रोनेज के जरिए जो है ना अपने आप को जो है ना वो रेंट सीकिंग और उसकी तरफ शॉर्ट टर्म्स की तरफ रहें। तो हमें हुकूमत को अब कंपटीशन इंटरनेशनल कंपटीशन की तरफ जाने की जरूरत है। और अगेन ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम तसलसल के साथ ये करते रहें, तो अगर हम इस साल के ऊपर ये फोकस करते हैं डॉक्टर और साहब तमाम हमारे इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो करें ना इसके ऊपर, कहाँ हैं वो? बिल्कुल। उड़ान डॉक्टर पाकिस्तान साहब है, अच्छा, सब लोग हैं, वेयर आर मैं इसी हवाले से बात करना चाह रहा, आप बिल्कुल उड़ान पाकिस्तान मिनिस्ट्री प्लानिंग का भी जिस हवाले से आपने बात की है, चाहे हम उड़ान पाकिस्तान को देख लें, चाहे हम SIFC को देख लें, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है इस हवाले से कि आपका बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी ताल्लुक़ है, वहाँ से भी आपकी जो है वो पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी और इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी को भी आप देखते हुए आए हैं। सरमायाकारी के लिए आप कह रहे हैं SIFC साजगार माहौल फराहम कर रहा है, ये कैसा साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है कि अभी तक वन विंडो ऑपरेशन जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारों को नहीं मिलते, यहाँ पर जो आके सरमायाकारी करने के लिए इंटरेस्टेड आखिर क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों के टैक्सेशन के आप रेट देखें तो इंग्लैंड से कई सरमायाकार छोड़ के अब दुबई शिफ्ट हो गए हैं, तो आप टैक्सेशन के हवाले से भी निज़ाम यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। जो तनख्वाहदार तबका है सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन का बोझ उसके ऊपर पड़ा हुआ है, टैक्स नेट को हम नहीं बढ़ाते, टैक्स रेशो को जो है वो हम बढ़ाए हुए चले जाते हैं। डिजिटलाइजेशन पता नहीं कब होगी FBR की जानिब से, लेकिन सर अगर यहाँ पर सरमायाकारी हमने करनी है तो वो कैसा साजगार माहौल होना चाहिए कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को वो एतमाद मिले कि यहाँ पर आके वो काम कर सके। SIFC 5 शोबों में काम कर रही है, लेकिन पांचों शोबों की अगर कारकर्दगी के हवाले से हम बात करें तो टूरिज्म में भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो इजाफा नहीं देखने में आ रहा, IT में नहीं देखने में आ रहा, एग्रीकल्चर में नहीं देखने में आ रहा, एनर्जी में नहीं देखने में आ रहा, तो फिर किस जगह पे हम लोग जो है वो हमारा फोकस्ड है और कहाँ से हमारा बढ़ता जा रहा है? एग्जैक्टली। देखिए, SIFC जो कोशिश कर रहा है या करता रहा है वो यही कोशिश करता है कि वो आसानी पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो, मैंने जिस तरह मिसाल दी, वो दरवाजा तो खोल देगा, लोगों को ले भी आएगा, उनको अट्रैक्ट भी कर लेगा, लेकिन अल्टीमेटली उस दरवाजे से दूसरी तरफ जब जाएंगे लोग, तो लोगों को उस विंडो के बाद जब लोगों से इंटरैक्ट करना है, वहां असल ट्रू पाकिस्तान की तस्वीर होगी। तो वहां डॉक्टर साहब, उनको loopholes चाहे कहाँ वो पर हैं? लाइसेंसेस, जी, लूप होल्स कहाँ पर हैं गवर्नमेंट की तरफ से? लूप होल्स देखे ना, लूप होल्स तो ये है कि जो हमारी जो पूरे मुल्क का जो निज़ाम है, एग्जीक्यूशन की जो मशीनरी है, वो आसार कदीमा में रहती है। ये मैंने पहले भी मेंशन किया है। वो दे नीड टू, उनको हमें मॉडर्नाइज करना है, उनको हमें KPIs के ऊपर लाना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे लाना है, डिजिटाइजेशन पे लाना है, फाइल वर्क से निकाल के उनको मॉडर्न टाइम स्टैम्प्स के ऊपर लाना है। अब दुनिया जो है वो क्लिक और लाइट स्पीड के ऊपर काम कर रही है, और हमारे वही जो काम है वो काम जो है वो डिले इसलिए हो रहे हैं कि हमारा जो तरीकेकार है, जिसको कहते हैं ऑफिस वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो अभी भी नॉन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रह रहा है। तो वो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे, बट स्लो है। बहुत सी गवर्नमेंट के कुछ फंक्शनरीज हैं वो बिल्कुल मार्जिनल लेवल के ऊपर कर रहे हैं, जो इन डेप्थ है वो नहीं है। तो वो फिर ट्रू चेंज जब तक नहीं आएगा वो आउटपुट्स हम नहीं अचीव कर सकते। हमारी पॉलिसी जो है, हम यही तो चाहते हैं कि पॉलिसी जो है वो क्यों जो है वो कारामद नहीं हो रही है। हम इस्लाहात तो लाते हैं पर वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। एक आखिरी छोटा सा अगर मुझे वो सम अप कर दें कि हम अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं कि हम जो है वो ये जो रेट है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, उसको भी मैनेज कर सकें और साथ ही हम कर्जों से भी बाहर निकल सकें। नहीं, इंटरेस्ट रेट तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट, स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी, देखें हमारे इंपोर्ट और इंपोर्ट कंप्रेशन और हमारी टोटल इन्फ्लेशन, इन चीज़ों को मैनेज करके मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अभी एक टाइट रखी हुई है कि हम कहीं दोबारा से वो वाली सिचुएशन में ना चले जाएं। वो एक कम्प्लीटली अलग एक सब्जेक्ट है, एक अलग उसके डायनामिक्स हैं। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, एक्सपोर्ट के लिए हुकूमत को हर सूरत फोकस्ड सेक्टर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका आज भी एनर्जी टैरिफ का ही है। तो एनर्जी टैरिफ एक बड़ा इनपुट है, उसको किसी ना किसी तरह कर्टेल करना पड़ेगा। All right. Well, thank you so much, Dr. Shamail Daud, for such an informative segment. ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, विल कंटिन्यू। हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में दोबारा आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और अब हम आज जो बात करने वाले हैं, वैसे हम पेरेंटिंग के हवाले से भी बात कर चुके हैं। हम चाह यही रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि आप भी हमें सजेशन दें कि किन मौज़ूआत पे बात की जा सकती है पेरेंटिंग या वालिदैन या बच्चों के हवाले से, क्या क्या आपके कंसर्न्स हैं जो कि एड्रेस किए जा सकते हैं। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे बच्चों को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो जिस्मानी हो, जहनी हो या समाजी हो, उनको कैसे जो है टैकल किया जा सकता है। वालिदैन को कौन कौन से, गफलत तो हम नहीं कह सकते कि वो बरतते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां वो कर जाते हैं। सो वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से फिर बच्चे जो हैं या तो वो ज़हनी नशोनुमा उनकी उस तरह से नहीं हो पाती या जिस्मानी नहीं हो पाती। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है डॉक्टर मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। सुबह से सेहत सेगमेंट में आप सभी को हम लोग जो है वो खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर मोहसिन हसन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से आ रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि बहुत जहनी दबाव का शिकार भी हैं बच्चे, सर्दियां आते साथ ही मौसम भी की भी तब्दीलियां हो जाती हैं, तो ओवरऑल किन केसेस को आप आजकल डील कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, आजकल जैसे आपने बताया कि मौसम सर्दियों का है, तो जाहिर बात है हमारे पास सबसे ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम के पेशेंट्स आ रहे हैं और फ्लू के पेशेंट्स आ रहे हैं। और इसी तरह कुछ जो बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या फ्लू की वजह से, या जैसे बहुत ज़्यादा ठंड में जैसे एक्सपोज हो जाते हैं बच्चे, तो नमूनिया के कुछ केसेस भी आ रहे हैं। तो आजकल तो सबसे ज़्यादा जो विंटर की वजह से ये केसेस आ रहे हैं। तो बाकी जो है ओवरऑल ज़ाहिर बात है कि बच्चों में तो बीमारियां चलती रहती हैं, जिसमें गैस्ट्रो भी आ जाता है और बाकी बीमारियां भी, तो हर तरह की बीमारी जो है आती है। लेकिन इस वक्त जो विंटर सीज़न है तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ्लू का सीज़न है। मेरे ख्याल से पहले बच्चों में गैस्ट्रो की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, इसकी सबसे ज़्यादा जो वजह है ना वो जंक फूड का इस्तेमाल है। और अब आपने देख ही लिया कितने फास्ट फूड चेन्स सिर्फ इस्लामाबाद में अगर आप देख लें तो कितने ऑपरेट कर रहे हैं। और इस हिसाब से जो कंजम्पशन है जंक फूड की, वो घर के फूड से बढ़कर वो जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जितना ज़्यादा आप जंक फूड पे जाएंगे, और जाहिर बात है अनहेल्दी फूड होता है, वो कोई हेल्दी फूड तो है नहीं, तो उसके बाद वो गैस्ट्रो की बीमारियां भी और बाकी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बच्चे में आजकल जो है वो गैस्ट्रो की बीमारी आ रही है, पहले ऐसे नहीं होता था। अच्छा, ये बताइए कि हम बच्चे की ओवरऑल अगर छोटा नौमौलूद बच्चा ले लेते हैं हम, उसकी नशोनुमा के लिए अब आजकल माहिरीन का ये कहना है कि पहला जो साल होता है 365 दिन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उसी टाइम उसकी हड्डियाँ मजबूत हो रही होती है, वो उसी टाइम उसका दिमाग भी डेवलप हो रहा होता है। उस टाइम पे उसके लिए कौन सी जो है वो एहतियात ज़रूरी होती है? देखें, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए, वो पहले 2.5 साल यानी 1000 दिन जो पहले होते हैं बच्चे के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जिस्मानी एतबार से भी और जहनी एतबार से भी। बिल्कुल। और दुनिया में सबसे ज़्यादा काम जो किया जाता है बच्चों की नशोनुमा में, वो इन 1000 दिन पे किया जाता है। और वो ये कहते हैं कि जो पहले 2.5 साल, क्योंकि 80% ब्रेन इसमें बन जाता है, और उनके मानना ये है कि अगर इस वक्त बच्चों में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो और बच्चों को अच्छी खुराक मिले, तो बच्चे आगे जाके ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, वो कारआमद हो सकते हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जिस प्रोफेशन में भी जाना चाहें, वो इस वक्त ब्रेन उनका बनाना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो खुराक की या न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो इन पहले 1000 दिन में होती है, यानी पहले 2.5 साल में। तो डॉक्टर साहब साथ यही फरमा दीजिए कि इस 1000 दिनों में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू देनी चाहिए बच्चों को और किन किन जरियों से देनी चाहिए? देखें, इसमें इन 1000 दिनों में या 2.5 साल में सबसे पहले 6 महीने तो माँ का दूध है जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड आप कराएं। उसके बाद हम ठोस ग़िज़ा थोड़ी सी शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करते हैं। और 1 ईयर के बाद हम आधे, जो हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये माओं को मैं बताना चाहूँगा कि जब 1 ईयर का बच्चा यानी 1 साल का होता है, तो इस वक्त दूध और फूड 50-50% होना चाहिए, यानी 50% आप दूध दें और 50% आप उसको खुराक दें। अब इसमें ये होता है कि हम दूध पे ही बच्चों को रखते हैं और फिर खुराक नहीं देते, ऐसा फिर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ गिर जाती हैं। तो ग्रेजुअली आपको जो है 6 मंथ तो एक्सक्लूसिवली आप ब्रेस्ट फीड करें, उसके बाद ठोस ग़िज़ा, और 1 ईयर के बाद फिर जब जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो फिर दूध नीचे चला जाता है और फिर फूड ऊपर चला जाता है। और उसमें बेस्ट चीज़ ये है कि जो घर में बनी हुई चीज़ें हैं, जिसमें आपके डेयरीज़ हैं
आपके ये चिकन, मटन, आपकी सब्जियां, फ्रूट्स, जी। आपकी दालें, लोबिया सारी चीज़ें वगैरह, आप हर बता रहे हैं चीज़। जो बच्चे खाते ही नहीं हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन यही चीज़ें जो हमने अपने बचपन में इस्तेमाल की हैं, आपने की हैं, यही बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट बेनिफिट अगर जिसमें है वो इन्हीं फूड्स। अच्छा, ये तो आपने जिस्मानी नशोनुमा की बात की, मैं समझ आ गई। आपने कहा 2,500 जो 2,500 दिन ढाई साल जो है स्टार्ट हाँ। के, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे तो ही। उसमें जहनी नशोनुमा जो है वो किस तरह, हम सपोज अब 6 महीने का बच्चा है, हम उसके सामने एक जो है कुछ कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या वो ये चीज़ें भी जो है वो ग्रो Adopt करता है? हाँ अडॉप्ट करता है, उसके दिमाग में बिल्ट होती देखें, है? इसमें कुछ हमारे ना हमने माइलस्टोन्स रखे होते हैं। पहली तो बात ये है कि हम बच्चे को असेस करते रहते हैं कि 3 महीने में बच्चा जो है वो अपनी गर्दन ठहरा लेता है, फिर उसके बाद 6 महीने में वो बैठ जाता है, फिर जहनी नशोनुमा क्यूज़ करता है, फिर तो हल्के हल्के लफ्ज़ बोलता है। देखें, जिस तरह हम बच्चों को ट्रीट करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा, आप राइम्स की तरफ जाते हैं, फिर बच्चों को वर्ड सिखाते हैं, फिर बच्चों को सेंटेंसेस सिखाते हैं, इसी तरह बच्चों को फिर पोइम सिखाई जाती है, 1 2 3 ABC अलिफ बे पे हम सिखाते हैं। तो इस तरह ग्रेजुअली आप उनकी नशोनुमा करते हैं। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा जो घर में माहौल होता है उससे बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। जिस तरह आप उनको लेके चलते हैं, जिस तरह आप उनसे बातचीत करते हैं, जिस तरह उनको डील करते हैं, ये वो सारी चीज़ें कि जिससे बच्चे लर्न करते हैं। लेकिन आजकल जो थोड़ा सा एक अच्छा है, आप मैं मौके से फ़ायदा उठाऊंगा कि जो स्क्रीन टाइम हमने देखा है उसकी इसने तरफ हम आने बहुत वाले ज़्यादा, हाँ आप आने वाले थे, मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाऊँ और फ़ौरन बताऊँ पेरेंट्स को कि ये बहुत ज़्यादा इससे डॉक्टर साहब ये कैसे डैमेजिंग होते हैं, ज़रा बताएं ना हमारे पेरेंट्स को। देखें, एक अभी आजकल एक नई उसमें आप और आपने कोई केस ऐसा ऑब्जर्व जी किया हो? बिल्कुल Please. ऐसा ही है, और केसेस हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और अब आपने देखा होगा कि जितने बहुत सारे नाम आप सुन रहे होंगे, पहले इतना नहीं सुना होगा, जैसे ऑटिज्म सुना होगा, ऑटिस्टिक yeah. स्पेक्ट्रम बिल्कुल, सुना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से, ADHD सुना होगा। तो बाज़ दफ़ा हम इसको मिसडायग्नोज कर देते हैं। बाज़ दफ़ा जब हम प्रोब करते हैं या हिस्ट्री करते हैं तो पता है चलता है कि बच्चा तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन दे रहा है, सारा वक्त स्क्रीन देख रहा है, जी। खा खाते रहा है, वक्त। पी रहा है, ना खेलना है ना कूदना है, और वो बस स्क्रीन ले रहा है, खा रहा है और फिर वही दे रहा है, फिर वो ज़िद्दी हो जाता है, फिर जाहिर बात है कि उसके टेंट्रम्स आते हैं, वो फोकस नहीं कर सकता, वो बाकी इन्वायरमेंट से आप देखें कि वो कट जाता है। और अच्छा, वो अगर आप स्क्रीन टाइम से उसको निकाल देते हैं ना, तो वो फिर भी उस स्क्रीन के अंदर रहता है बिल्कुल और वो ऐसे वही ही है। सोच रहा होता है। आप उसे कहीं पर भी ले आप जाएंगे ना, उसको खाना भी खिला रहे होते हैं तो उसका दिमाग वही बिल्कुल अटका होता उसका है। दिमाग वहीं रहेगा। तो जब उसका दिमाग वहाँ रहेगा तो वो एनवायरनमेंट से भी नहीं सीखेगा, आपसे भी नहीं सीखेगा। देखिए, हम स्कूलिंग क्यों करते हैं? हम घर में बैठ के भी पढ़ लें, लेकिन स्कूल से आप सीखते हैं, स्कूल की एनवायरनमेंट से आप एक लर्निंग होती है आपकी, ठीक है, एनवायरनमेंट भी आपको लर्निंग सिखाती बिल्कुल है। ऐसे तो ये जो लर्निंग है, ये जो उसकी दिमाग की कैपेसिटी है, या आप ये कह लें कि उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो सारी कम होती चली जाती हैं। वो सीखना कम कर देता है, वो सिर्फ स्क्रीन में रहता है। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता वालिदैन है। ये समझते हैं कि जो बच्चा स्क्रीन से देखकर सीख रहा है वो तो उसके नॉलेज में इजाफा भी कर रहा है, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीजें देख रहा है जो हम उसको नहीं दिखा पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो चीज़ देखें, पेरेंट्स को पता है कि हमने बच्चे को क्या सिखाना है, स्क्रीन को नहीं पता कि उसने जी, बच्चे को क्या बिल्कुल। सिखाना है। स्क्रीन तो उसमें जो कुछ वो बच्चा देख रहा है, कंटेंट सब देख कुछ रहा है, है, जी। वो बच्चा वो लर्न कर रहा है। देखिए, मैंने एक तस्वीर देखी थी बड़ी ज़बरदस्त, मैं उसको बताऊं कि एक तस्वीर, एक कैमरा बना हुआ था, उसके अंदर से एक, वो आपको पता है वो एक धागा होता है जिससे हम पहले वो स्वेटर बुना करते थे, बिल्कुल, तो वो धागा वहां से स्क्रीन से आ रहा है और उसका वो ब्रेन बना रहा है। तो इसका मकसद ये हुआ कि वो जो स्क्रीन है वही या उसके वो ब्रेन इसका की brain डेवलपमेंट बना कर रही है, वो बिल्कुल। वहीं से सीख रहा है, बजाय इसके कि वो पेरेंट्स से सीखता है, एनवायरनमेंट से सीखता है, स्कूल से हाउ सीखता है। फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस अंडर 5 एज और अंडर 8 एज? देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, आप ब्रेन को एक रिफ्रेशर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं उसको, आपके कुछ एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, आप खुश होते हैं। आप जब आप भागते दौड़ते हैं, खासतौर पे जब बच्चा भागता दौड़ता है, उसको भूख लगती है, फिर वो खाना खाता है, बिल्कुल। ठीक है, उसी हिसाब से फिर वो उसकी एक्टिविटी मैनेज होती है, ओबेसिटी उसकी कम होती है। ओबेसिटी आपको होता है मोटापन, जी, मोटापा जो है वो खुद एक बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी एक्टिविटी करते हैं, उसका स्क्रीन टाइम लिमिट कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ख़त्म कर दें, आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा उसको दे दें तो ये भी काफ़ी है, और कंटेंट को देख लें कि वो बच्चा क्या देख रहा है। बिल्कुल। तो बच्चा एक अच्छी, जाहिर बात जैसे है, एक हेल्दी तंदुरुस्त बच्चा जहन होगा। जो है वो तंदुरुस्त बॉडी को जन्म बिल्कुल देता है, है, तो बिल्कुल। तंदुरुस्त देखें, बॉडी भी जहन, तंदुरुस्त, मेंटल हाँ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है important है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। हम फिजिकल हेल्थ को बाज़ दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं, मेंटल हेल्थ को छोड़ Neglect देते हो हैं। जाता है। सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो हिफाजती टीके होते हैं, वैक्सीन्स होती हैं, ये कौन कौन सी बच्चे को लगवानी चाहिए, किस वक्त में लगवानी चाहिए?
देखिए ये तो हम बचपन से ही शुरू कर देते हैं, यानी पहले दिन का बच्चा होता है हम उसको BCG और ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, फिर 1.5 माह पे होती है, फिर 3 माह पे, और इसी तरह फिर उसके मतलब 10 हफ्तों में 14 हफ्तों में उसको फिर ये बूस्टर्स डोजेस लगती हैं, फिर उसके बाद 9 माह पे उसको मीजल्स वगैरह। तो ये एक पूरा स्केड्यूल है जो रन करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होता है, लेकिन प्राइवेट ये में भी होते होता है। किस लिए? इम्यून टू द देखें, वर्ल्ड, टू द देखें नहीं, एनवायरनमेंट इसमें ये होता है कि इम्यूनिटी देने के लिए होते हैं, यानी मैं आपको सादा ज़बान में बताऊं कि पहले ही आपको जिस्म को आपको तैयार कर देते हैं डिजीज के लिए, इम्यूनिटी दे देते हैं, एंटीबॉडीज आपकी डेवलप हो जाती हैं, बेसिकली एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके जिस्म को पहले ही से पता लग जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा और कौन सा जो है ये बीमारी आएगी, तो उसके लिए जिस्म पहले से तैयार हो जाता है। तो जब वो बीमारी आती है तो बॉडी उससे अच्छी खासी नबर आजमा हो जाती है और आप बच्चे महफूज हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने बात की कि जैसे ना आजकल हमारे बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा एंजॉय करते हैं और स्क्रीन टाइम ही उनका दिमाग बना रहा होता है, राइट? सो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये होता है कि वो अपने बच्चे के इवन उनके पेट पे सुलाने का भी टाइम होता है कि जी वो उल्टा लेटेंगे बच्चे तो उनसे वो उनकी बॉडी मजबूत होती है, फिर वो माँ के पेट पे लेट के जो है वो उनका कनेक्शन मजबूत होता है, फिर वो उनकी इन्वायरमेंट की बाहर ले जाके दरख्तों पे बता के ये सब कुछ बताना है कि जी ये ट्री है, ये है, हम वो स्क्रीन को दे रहे हैं लेकिन वहाँ उनकी बाकायदा इन चीज़ों की नशोनुमा होती है। तो क्या हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में इस चीज़ की कमी है कि हम पेरेंट्स को काउंसिल नहीं करते हैं कि वो माँ बाप बनने से पहले उनको कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए? देखें, आपने शुरू में इंट्रो में कहा था पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेरेंट्स को अगर एजुकेशन ही नहीं होगी, उनको पता ही नहीं होगा कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है, तो बच्चे को तो नहीं पता कि उसने खुद से कैसे चलना है। तो सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स को हमें फोकस करना चाहिए, यानी स्क्रीन टाइम से किसने रोकना है? स्क्रीन टाइम से सबसे पहले पेरेंट्स ने रोकना है। जब पेरेंट्स को पता होगा कि इसका नुकसान है और जब ये पेरेंट्स को बावर हो जाएगा, उन्हें यकीन हो जाएगा कि वाकई इसका नुकसान है, तो वो उसको जरूर रोकेंगे। देखिए कोई भी शख्स अपने बच्चे को जो है वो बुराई की तरफ जाते नहीं देख सकता, या वो ये नहीं देख सकता कि उसकी मेंटल हेल्थ ना बने, फिजिकल हेल्थ ना बने, या वो बच्चा आगे जाके कोई अच्छा प्रोफेशन में ना चले। तो जब पेरेंट्स को ये पता लग जाएगा तो जाहिर बात है, तो सबसे ज्यादा जो एजुकेशन की जरूरत है वो पेरेंट्स की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बात करते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की, आयरन डेफिशिएंसी की, बड़ी एज में तो जाके हो जाती है, लेकिन क्या ये बच्चों में भी होती है? बच्चों में सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। बच्चों में देखें वजह यह है, आप सवाल पूरा करिए। देखें, बच्चों में ये होता है कि जब आप उसे खुराक ही नहीं देंगे, आयरन रिच चीज़ें ही नहीं देंगे, धूप में वो बच्चा नहीं खेलेगा, तो विटामिन डी की भी उसमें कमी होगी, तो फिर आयरन की भी कमी होगी। ये जितने हम एड्स देख रहे होते हैं कि बच्चों को फलाना दूध आप पिलाएं या फलानी चीज़ पिलाएं, उससे आपकी डेफिशिएंसीज कम होंगी, डायरेक्टली वो दूध पिला देना चाहिए या पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखें, जो दूध तो 1 गिलास, मैंने आपको बताया 1 ईयर के बाद 1 से 1.5 गिलास दूध आप दे दें। दूध जोन सा अच्छा दूध आपको लगता है मार्केट में अवेलेबल, वो आप दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट 1 साल से ऊपर ज़रूरत होता है वो है खुराक। और उस खुराक में वही चीज़ें आती हैं जो हमने जैसे पहले बात की, जिसमें दूध भी है, जिसमें चीज़, मक्खन, जिसमें गोश्त वगैरह शामिल है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, लोबिया, दालें वगैरह, ये सब शामिल। इन सब में भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मुकम्मल जब जामे उसको हेल्दी डाइट बनेगी ना, तब जाके वो हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। सिर्फ दूध ही नहीं। लगता है कि हम कौन सी चीज़ें जो हैं वो गलत कर रहे हैं अपनी बच्चों की, क्योंकि हम कभी कभार उन पे पढ़ाई का ज़्यादा बोझ डाल देते हैं, साथ खुराकें इतनी खिला रहे होते हैं कि जी खाओ पियो भी और पढ़ाई भी करो, सोशलाइज नहीं करने देते, या कुछ ऐसी कॉमन जो चीज़ें हैं जो हम गलतियाँ कर रहे हैं बट हमें नहीं लग रहा कि देखिए सबसे ज़्यादा ये कि आप मुतवाज़िन के ज़्यादा गलतियाँ ये है कि हम ये समझते हैं, बड़ा पेरेंट्स को भी बताता हूँ कि हम ये समझते हैं हम बन बाहर से ले आते हैं, बर्गर पेटी बाहर से ले आते हैं, घर में बनाते हैं, ये जंक नहीं है, ये जंक है, ये जंक है, ठीक है, ये भी जंक है। सिर्फ ये नहीं है कि घर में बना लिया उसको बच्चे को देते, ये भी जंक है। तो हमें जो गलतियां हमारी हैं वो ये कि हम एक हेल्दी मुतवाज़िन ग़िज़ा दें। जंक फूड को हम देखें, जिस तरह फास्ट फूड्स बन गए हैं, मैं आसानी के लिए बताऊं, हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, उसको लिमिट कर सकते हैं। हाँ। जैसे बाहर की दुनिया में उन्होंने लिमिट किया हुआ है, और मैं आपको बताऊं कि इवन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो आपकी सर्विंग्स है ना, आप फ्री वो नहीं दे सकते कि एक ड्रिंक ले ली और ड्रिंक आप बस लातादाद लिए जाएं, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिमिट किया हुआ है, क्योंकि आप लातादाद टाइम लेते चले जाएंगे, वो तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा देंगे। तो उन्होंने इसी तरह सर्विंग्स को लिमिट किया हुआ है।
ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جنک فوڈ ہم بالکل اوائڈ تو نہیں کر سکتے آج کل کے زمانے میں, لیکن اس کو لمٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں لیکن سب سے زیادہ جو پورشن ہوگا وہ ہیلدی ڈائٹ کا ہوگا, جو گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اگر تھوڑا سا کچھ چیزیں بچ جائیں تو وہ پھر بے شک ان کو بچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی دیکھنے میں آیا, میرے بھانجا بھانجی چھوٹے چھوٹے ہیں, اکثر بچوں کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے, چاہے سارا دن وہ نہیں سوئیں گے لیکن پھر بھی رات کو سوتے سوتے انہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے, وہ بچے اٹھ جاتے ہیں. اور ہمارے زمانے کے بچے ہوتے تھے کہ ایک بار سوتے تھے تو رات بھر اٹھتے ہی نہیں تھے. یہ کیا ویسے واقعی میں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں نا بچوں کا ایک ٹائم بنانا چاہیے سب سے پہلے, کہ آپ جب ایک ٹائم بناتے ہیں نا, نیند کا بھی ایک ردم بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کچھ دن ایک ٹائم پہ سونا شروع کریں نا تو آپ کی نیند اس ٹائم پہ بن جائے گی, لیکن جب اگر آپ روزانہ اپنا ٹائم شفٹ کریں گے نا, کہ آج آپ 11 بجے سوئے, کل 12 بجے, پھر 1 بجے سو گئے, پھر رات کو 10 بجے کسی دن سونا چاہیں گے تو نیند نہیں آئے گی. تو آپ جب اپنی روٹین بنائیں گے نا تو پھر روٹین آپ کو ڈیلی نیند جو ہے اسی طرح دے گی. تو بچوں کی بھی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی روٹین بنائیں, ڈیلی روٹین بنائیں. یہ نہ کہیں کہ ویسے تو بچے جو ہے وہ 1-2 بجے سو رہے ہیں اور ایک دن آپ چاہیں کہ وہ بچہ 10 بجے سو جائے, ایسا نہیں ہوگا. آپ پھر اس کی روٹین بنائیں گے تاکہ رات کو اس کے گروتھ ہارمون بھی ریلیز ہو اور صبح جو ہے وہ ایک اور کامن جو ہے وہ چیز ہم گھروں میں دیکھتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہوتی ہے, لیکن میرے گھر میں میڈیکل والے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب بڑا کوئی شخص ہے, اس کو ایک دفعہ نزلہ زکام ہوا ہے, اس نے میڈیسن لی, اس کو پتہ لگ گیا کہ اس میڈیسن سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, اگلی دفعہ وہ سیم میڈیسن لیتا ہے. بچہ جو ہے وہ ایج کے ساتھ گروتھ کر رہا ہے, نشو و نما اس کی تبدیل ہو رہی ہے, بہت چیزیں جو ہے وہ بڑے مرد کے مقابلے میں یا عورت کے مقابلے میں تبدیل ہوتی ہیں بچوں کی. تو ڈاکٹر صاحب وہ جو سیم میڈیسن ہم بچوں کو بار بار دے دیتے ہیں, وہ دے دینی چاہیے کہ پچھلی دفعہ اس کا زکام اس سے ٹھیک ہو گیا تھا تو اس دفعہ بھی ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس میں سیلف میڈیکیشن ہے, یہ سیلف میڈیکیشن کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. آپ سیلف میڈیکیشن میں صرف یہ کہ آپ پیراسیٹامول وغیرہ دے دیں, بخار وغیرہ کی دوا دے دیں, لیکن وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس دی ہوتی ہیں, کچھ ایسی دوا ہوتی ہیں جو صرف ایک مخصوص ٹائم کے لیے دی جاتی ہے اور مخصوص بیماری کے لیے دی جاتی ہے, یا ایسی کہ کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے یا کوئی بھی آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو دوائیاں دی جاتی ہیں مخصوص مقدار. جیسے کولک ڈراپس آپ نے جو ہے وہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے ان کو دینے ہیں, جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو ریگولر دیں گی تو اس کا بھی نقصان ہوگا. تو پیرنٹس کو سب سے زیادہ یہ بتانے کی ضرورت ہے, یا ہم سب کو بھی, بڑوں کو بھی, یہ ہے کہ ہم بڑے بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ ایک ہی دوا مختلف بیماریوں کے لیے استعمال نہ کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موسٹلی بچوں میں خاص طور پہ وائرل انفیکشن سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ہم انہیں اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اینٹی بایوٹکس کے ریزسٹنس بھی اس سے زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ پیراسیٹامول وغیرہ دے دیں, کوئی کھانسی کا شربت آپ دے سکتے ہیں, لیکن اینٹی بایوٹکس کا استعمال یا کوئی ایسی دوا جو ڈاکٹر نے آپ کو اس بیماری کے لیے دی ہوئی ہو, خاص بیماری کے لیے دی ہو, وہ آپ دوبارہ استعمال نہ کریں. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محسن حسن آپ کے وقت کے لیے. وی ہوپ کہ ہمارے اس سیگمنٹ سے جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا, لیکن میسج صرف یہی ہے کہ اپنے بچوں کو آج کے دور کے مطابق بالکل ڈیفینیٹلی ان کی کریں پرورش. حضرت علی کا قول بھی اسی طریقے سے, لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں کہ خوراک بہت زیادہ ضرورت ہے, غذائیت بہت زیادہ ضرورت ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اسکرین ٹائم کم کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کچھ بھی آپ ایسا فیل کرتے ہیں تو ڈاکٹر کو بر وقت چیک کروانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہر دور کے آزمودہ نسخے ہیں. ایگزیکٹلی. اسی کے ساتھ ہم لوگ وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے تو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ذرا بات کریں گے, ذرا فٹنس کے اوپر ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا. کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے کہ جسمانی صحت کتنی ضروری ہے. اگر آپ کا موڈ جو ہے وہ خراب ہے, اگر آپ کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی, یا آپ کو دن آپ کا مشکل گزر رہا ہے, تو ان تمام تر چیزوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, صحت کے لیے کتنی ضروری ہے, اور ذہنی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے, اس کے فوائد کیا ہیں, اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ فٹنس ٹرینر جو ہے وہ موجود ہیں, محترمہ وصف نعیم. السلام علیکم وصف. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ. وصف, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے موڈ جو ہے وہ اپلفٹ کر سکتی ہے, آپ کا دن اچھا کر سکتی ہے, آپ کی جو ہے وہ باڈی کو ریلیکس کر سکتی ہے ایک اچھی فزیکل ایکٹیویٹی؟
بالکل فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی باڈی کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ صرف 10 سے 15 منٹ کا ایک چھوٹا سا سیشن بھی ورک آؤٹ کا کرتے ہو, ضروری نہیں آپ ورک آؤٹ کر رہے ہو, آپ جس میں صرف آپ اپنی موومنٹ کریٹ کر رہے ہو, وہ فوراً آپ کی باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے انڈورفن کہتے ہیں, ہیپی ہارمونز ان کو ہم کہتے ہیں, وہ فوراً آپ کو ایک اچیومنٹ کی فیلنگ دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ آپ کا موڈ بھی اپلفٹ کر لیتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن وغیرہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ایکسرسائز سے زیادہ اچھی میڈیسن ہی کوئی نہیں. اگر آپ ایکسرسائز کو اپنی میڈیسن بنا لیں تو آپ کو باہر کی بہت ساری میڈیسن سے آپ بچ جاتے ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے صحت کے لیے ایکسرسائز کرنا. اور بچوں, اور میں اس میں ایج کی کوئی وہ نہیں کروں گی. اب تو یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اے آئی کا زمانہ ہے. اس ٹائم پر تو بہت سارے لوگ جو ہے نا صرف ان کا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم وہ ہو گئے سیڈنٹری لائف اسٹائل. اب کچھ منگوانا بھی ہوتا ہے تو ہم کال پر بلا لیتے ہیں کہ فری ڈیلیوری ہو جائے. تو ہمارا اسٹیپ کاؤنٹ کتنا ریڈیوس ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہیں ہمارے فٹنس کو. تو فٹنس بہت ضروری ہے, لازمی اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے. کوئک فزیکل ایکٹیویٹی جو بتانا چاہیں گے, جو ہم ڈیلی روٹین میں, لیٹ سپوز ہم آفس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 11 گھنٹے کی بھی لوگوں کی شفٹ ہوتی ہے, کچھ کی 9 گھنٹے کی ہوتی ہے, 8 گھنٹے کی ہوتی ہے, سو اس میں سب سے کوئک 10-15 منٹس کی روٹین وہ ایکسرسائز کیا یوز کر سکتے ہیں جس سے وہ بہتر فیل کریں؟ یہ والا کویشچن مجھے اتنا زیادہ آتا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو جاب کرتے ہیں, جن کی 9 to 5 جابس ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو یہاں پر میں یہ بولتی ہوں کہ ان لوگوں کو کہ پہلی چیز تو یہ کہ پرائرٹائز آپ نے کرنا ہوتا ہے. آپ نے پرائرٹائز کرنی کہ بھئی آپ کی صحت ہے, آپ کی اپنی باڈی ہے. اگر اس کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی پیسہ, کچھ بھی آپ کے لیے وہ کام نہیں آئے گا. جو صحت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ضروری ہے. پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے. پہلے تو بولوں گی کہ یار 1 گھنٹہ تو نکالنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں, آپ کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 4% بھی نہیں دن کا بنتا, تو وہ ضرور نکالیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں نکال پاتے تو اسٹیپ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ منیمم 6K to 7K مطلب 6000 سے 7000 کا اسٹیپ کاؤنٹ آپ انکریز رکھیں. وہ آپ کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ اگر آفس میں ہی تھوڑا سا کام شام کیا, تھوڑا بہت واک کریں. واک کیا, باتھ روم جو ہے آپ وہاں تک جاتے ہو, کوشش کریں اسٹیئرس کا استعمال کریں, ایلیویٹرز کا, لفٹ کا استعمال نہ کریں. اچھا, اس میں بھی بہت سارے لوگ, سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں آپ کو ایلیویٹر جو ہے وہ آپ کو لفٹ نہیں یوز کرنی چاہیے, آپ کو سیڑھیوں سے ہی جانا چاہیے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو اپوزٹ کرنا چاہیے. تو کون سا بہتر ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے جوائنٹس میں مسئلہ آتا ہے, ہڈیاں آپ کی کمزور ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کے لیے دیکھیں, خواتین میں اکثر یہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, تو وہ وہاں پر آپ اس پر جائیں, آپ وہاں پر اپنی ڈائٹ سے ٹھیک کریں. ایکسرسائز از ریئلی امپورٹنٹ. ہاں اگر آپ کو ڈاکٹر نے فار انسٹنس کوئی بیماری بتا دی ہے, آرتھرائٹس ہے یا کچھ ہے, تو پھر تو اوبیسلی آپ کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. دین ہم تھیراپی کی طرف جاتے ہیں, فزیو تھیراپی وغیرہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں ہے, ہم جیسے جوان لوگ ہیں بس کہتے کوئی پانی لا دے, کوئی یہ لا دے, تو یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے, اس کو اوائڈ کریں. رننگ از امپورٹنٹ اور برسک واک از امپورٹنٹ. اف اٹس اے مسٹ دین اٹس اے برسک واک. اگر میں مسٹ کی بات کروں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر کرنی ہے تو پلیز برسک واک ضرور کرو. رننگ ایک اسٹیپ اپورڈ ہے. ہم لوگ یہاں سے, ہم پر واک نہیں ہوگی تو ہم رننگ کدھر سے کریں گے؟ ہم لوگ یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ تک نہیں جا رہے. تو برسک واک بہت زیادہ اچھی چیز ہے. اینڈ بائی دا وے آج کل جو میں اسٹڈیز پڑھ رہی ہوں اس میں یہ اسٹرینتھ ٹریننگ, ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ, یہ ساری چیزیں بہت, مطلب ہم نے شروع سے ہی پڑھا ہے کہ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ اور میں بھی اکثر بات کرتے تھے اسٹرینتھ ٹریننگ کتنی زیادہ اچھی ہے, بہت اچھی ہے. لیکن اگر ہم لوگ صرف ایک وہ بات کریں کہ بیسک لیول پر واک اتنی میریکولیسلی آپ کو ہیلپ کرتی ہے, یو کین ناٹ امیجن. آپ کا اگر دن میں آپ آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام میں واک کر رہے ہو اور آپ کے 6 سے 7 ہزار کا اسٹیپ کاؤنٹ ہو رہا ہے, تو آپ بہت سارے لوگوں میں مارجن کے ساتھ آپ ہیلدی ریٹ پہ آتے ہو. اگر ہم ان کے اسٹینڈرڈس کو چیک کریں, اس سے نہ آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے, آپ گیون دیٹ آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ اوور ایٹ کرو, لیکن اگر ایک آپ کی اچھی بیلنس ڈائٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کا 6 سے 7 ہزار کا اسٹیپ کاؤنٹ ہو رہا ہے ان اینی وے, چاہے وہ واکنگ کے تھرو ہو رہا ہے, برسک واک کے تھرو ہو رہا ہے, جاگنگ کے تھرو ہو رہا ہے, کسی بھی طریقے سے ہو رہا ہے, تو یہ آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. یہ آپ کا ویٹ گین کبھی بھی نہیں ہونے دیتی, اور آپ کی بہت ساری ڈیزیزز کو بہت. بس ہیو یو سین اینی کیسز جس میں جوائنٹ پین جو ہے وہ ریلیز ہوا ہو لوگوں کا, ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہوا ہو, کولیسٹرول جو ہے وہ کم ہوا ہو, اور کسی کی نیند بہتر ہوئی ہو؟
بالکل، یہ تو بیسک لیول کے چینجز ہیں. جب آپ ورک آؤٹ کی روٹین کو کنسسٹنٹلی فالو کرتے ہو یہ بیسک لیول پر آپ کو چینجز آتے ہیں. فار انسٹنس اگر کسی کو جوائنٹ پین ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ کنسسٹنٹ فزیو تھراپی کرے گا, ریلیجیسلی فالو کرے گا, تو اس کو 100% ریزلٹس آئیں گے. ہم لوگ ابھی یہاں پر صرف ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ڈائٹ کا ایک بہت بڑا پیچھے کی طرف سے ایک ہیلپ فل ہے. 80% آف دا ایکویژن ہم بولیں گے کہ وہ ڈائٹ ہے جو آپ کے لیے کر رہی ہے. لیکن اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کریں گے, فزیو تھراپی سے ریلیجیسلی کرنے سے آپ کو بہت اچھے اس کے ریزلٹس آتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا میں نے نی پین ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, فروزن شولڈر ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, انہیں سروائکل کی پین ہے. دین شیٹیکا از ریئلی آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پہ خواتین میں, اور پھر میں نے دیکھا کہ مردوں میں بھی بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. شیٹیکا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ فزیو تھراپی ریلیجیسلی کریں. وہ بیسک کوئی 4 سے 5 ایکسرسائزز ہیں اور جو آپ کو بہت ہی میریکلسلی ہیلپ کرتی ہیں اس چیز کو ختم کرنے میں. اگین شولڈر فروزن وغیرہ جو جوائنٹس کی آپ نے بات کی, یہ ساری چیزیں حل ہونے والی ہیں. بٹ 10 سے 15 منٹ کی فزیو تھراپی, یہ کوئی زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے, 10 سے 15 منٹ آپ دے سکتے ہیں وہ کرنے. اینڈ دین دوسری آپ نے چیز کی ڈپریشن اور انزائٹی. ایکسرسائز کا جو نمبر 1 فائدہ آپ نے خود بھی دیکھا, اگر آپ نے خود ورک آؤٹ کیا ہے تو ایک ورک آؤٹ کمپلیٹ ہوتے ساتھ ہی آپ کو ایک فیلنگ آف اچیومنٹ ہوتی ہے. وہ فیلنگ آف اچیومنٹ از سم تھنگ دیٹ کہ آپ نے پورے دن میں اپنی باڈی کے ساتھ ایک ایسا کام ختم کیا ہے جو آپ کو ایک دم سے اپلفٹ کرے گا. اور وہ ڈپریشن اور انزائٹی کے لیے نمبر 1 چیز ہے. اگین تھراپی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو لینی پڑتی ہے, لیکن یہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے جو بہت زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, جس میں آپ کا کچھ جا نہیں رہا, نہ آپ نے میڈیسنز لینی ہے اس کے لیے, نہ آپ نے کچھ لینا ہے, بلکہ آپ کو فری میں مل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایج کی اگر ہم بات کریں تو ہم کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے 13 سال کی عمر سے واک شروع نہیں کی ہے تو بے شک آپ 30 سال کی عمر میں جا کے واک شروع بھی کر لیں, بٹ آپ کو وہ اس طرح بینیفٹ نہیں دے سکتا جو آپ کو 13 سال کی عمر سے. تو 13 سال کا ویسے عمر کا بچہ اتنی وہ نہیں سمجھتا ہوتا کہ واک کی یا پھر ایکسرسائز کی کیا افادیت ہو سکتی ہے. سو آیا اگر ہم 30 سال کی عمر کے بعد ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو بھی کیا ہم تاحیات جوان رہ سکتے ہیں؟ لیکن بیٹر لیٹ دین نیور, یہ والا تو حساب ہر جگہ پر چلتا ہے. لیکن جہاں پر 13 سال کی بات کی, میں 13 سال سے بھی پہلے جاؤں گی. یہ چیز ہے کہ ایکسرسائز کو اگر ہم یہ بول دیں کہ یہ آپ کی باڈی کی آپشن نہیں ہے, اٹس اے کریٹیکل, اور یہ ضروری چیز ہے. جس طرح سے ہم آف ریکارڈ نجم کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے, نجم کہہ رہا تھا اس کو ہم نے ایسے ہی لینا ہے جیسے کھانا پینا وغیرہ آپ نے کرنا ہے, اسی طرح سے ایکسرسائز کرنا ہے. اگر میں بہت بیسک لیول پر جا کے آپ کو ایک ایکسرسائز کا فائدہ بتاؤں, ایکسرسائز بیسکلی کیا کریے, ہماری باڈی کس سے بنی ہوئی ہے, مسل سے بنی ہوئی ہے, سیل سے بنی ہوئی ہے. مسلس جو ہیں وہ ایک پوری طریقے سے ایک لیونگ آرگینزمز ہیں جو بڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز اس کی موومنٹ جو ہے وہ آپ کی جو ہے مسلس کو بڑھاتی ہے, اس کو گرو کرتی ہے. جب زیادہ مسل ہوتا ہے وہی مسل آپ کے جوائنٹس کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. جب آپ کا مسل کم ہوتا ہے باڈی میں تو ہی آپ کے جوائنٹس زیادہ تر ان پر افیکٹ آتا ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی پین شروع ہو جاتا ہے. تو جب مسل بڑھتا ہے تو وہ آپ کے جوائنٹس کو سپورٹ کرتا ہے, اور پوری باڈی مسل سے بنی ہوئی ہے. ہمارا دل, ہمارے لنگس, برین, ایوری تھنگ از ود مسلس. تو جب ہم مسلس کا خیال رکھتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ ایک اتنی ضروری چیز ہے آپ کی باڈی کے لیے. یہ اللہ نے امانت دی ہوئی آپ کو, آپ کی باڈی, اور اس کا حساب کیا جائے گا. تو اس کا آپ نے اسی طرح سے خیال رکھنا ہے. 150 منٹس پورے ویک میں اگر آپ فزیکلی کسی بھی طریقے سے ایکٹیو ہیں, اٹس ریئلی گڈ. اسٹرینتھ ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے, اور بچوں کی آپ ایسے کریں کہ جب وہ بچہ بڑا ہو رہا تو وہ آپ کو دیکھے کہ بھئی آپ بھی فزیکلی ایکٹیو ہیں, تو اس کے اندر وہ انکلکیٹ کی جائے چیز کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے. واک, رننگ وغیرہ بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, بٹ کوئی نہ کوئی آؤٹ ڈور گیم ضرور ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی. ویل تھینک یو سو مچ. بس آج تو ہم نے ذرا جنرل ڈسکس کیا, ایک اور ٹاپک ہے مدر ویلنس کے حوالے سے اور پوسٹ برتھ کے حوالے سے, وہ بھی ہم ڈیفینیٹلی کسی دن ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج ہمارے پاس وقت چونکہ کم تھا. خواتین نظر اپنا بہت سارا خیال رکھیں, فیڈ بیک ضرور شیئر کریں. مجھے اور نازش کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.